Good morning, students. Today we are going to study about photochemical chain reaction. आज का टॉपिक है हमारा फोटोकेमिकल चेन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम समझेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या है। पिछले लेक्चर में हमने चेन रिएक्शन क्या है ये समझा था। अब हम देखते हैं व्हाट आर द फोटोकेमिकल रिएक्शंस। So, the reactions which can occur by the absorption of photons of suitable energy are known as photochemical reactions. Those reactions which take place by absorbing the photon of suitable energy are known as photochemical reactions. The photon energies lie mostly in the visible and ultraviolet region. जो फोटोन एब्जॉर्ब किए जाते हैं उनकी एनर्जी जनरली किस रेंज में होती है, विजिबल रेंज में या अल्ट्रावायलेट रीजन में। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस किससे होती हैं, रिएक्टेंट के द्वारा। जब फोटोन का एनर्जी बंडल का एब्जॉर्प्शन होता है और उस एनर्जी से जो रिएक्शंस होती हैं दे आर नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अब इन रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट वन इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। 2Hi HNu. HNu means absorption of photon, convert into H2 plus I2, decomposition. इसी तरीके से 2HBr, HNu indicate the energy of photon, H2 plus Br2. Second type, photochemical decomposition of ammonia. Ammonia by absorbing a photon decompose into nitrogen and hydrogen. Third one is photochemical combination of hydrogen and halogen to form hydrogen halides. Reverse of photochemical decomposition, that is H2 plus X2. X2 means any halogen molecule absorbs a photon HNu and convert into 2HX. Next, isomerization of malic acid to fumaric acid. See, malic acid after absorbing a photon converted into fumaric acid. These all reactions are photochemical reactions taking place by the absorption of a photon having suitable energy. Now, what is photochemical chain reaction? पिछले टर्न पर हमने चेन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। चेन रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं होती, इट टेक्स प्लेस इन न्यूमरस स्टेप्स। तो दोज चेन रिएक्शंस इन विच the chain initiation step is absorption of photon by a reactant molecule are known as photochemical chain reaction. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि चेन रिएक्शन में द फर्स्ट एंड द प्राइमरी स्टेप इज चेन इनिशिएशन. इफ फॉर द इनिशिएशन ऑफ ए चेन ए फोटोन is required, then such chain reactions are known as photochemical chain reactions. In these reactions, primary initiation step is followed by chain propagation, chain inhibition and chain termination step. लेकिन बाकी के स्टेप्स में फोटोन की आवश्यकता नहीं होती. The photon is required only in the primary step, or we can say chain initiation step. To initiate a reaction, photon is
रिक्वायर्ड। अब इस रिएक्शन का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोन टू गिव ट्वाइस HCl। तो now we are going to study the kinetics of this reaction, kinetics of hydrogen chlorine reaction. See, यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है हाइड्रोजन G in the gaseous form plus Cl2 in the gaseous form will give twice HCl in the gaseous form. Rate constant is K. अब this is not the single step reaction. This is the chain reaction. The following mechanism has been suggested for this chain reaction. क्या mechanism है? First step. In first step, chlorine molecule absorbs photon Hν and converted into 2Cl free radical. क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होता है और क्या बनता है 2Cl फ्री रेडिकल। रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज K1. यू नो दिस इज चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में हमें किसकी ज़रूरत है? फोटोन की। नेक्स्ट, दिस Cl free radical is a reaction intermediate. In second step, it reacts with hydrogen atom and form HCl and hydrogen free radical. Rate constant is K2. This hydrogen free radical is also a reaction intermediate. Again it reacts with Cl2. And form HCl and again Cl free radical. Rate constant is K3. So these H free radical and Cl free radical propagate a reaction. These steps are known as chain propagation steps, and a numerous amount of HCl molecules are produced. Next, Cl free radicals collide with a wall of container and form half Cl2 molecule. Rate constant is K4. In this way, Cl free radical vanishes out and the reaction terminates. So this is the chain termination step. This is the chain termination step. With the help of chain propagation step, 10 to the power 4 to 10 to the power 6 HCl molecules are formed. So we see only by observing one quanta 10 to the power 4 to 10 to the power 6 molecules are converted into product. So the quantum efficiency for this reaction is very high. That is, it is the order of 10 to the power 4 to 10 to the power 6. अब according to the above mechanism, इस mechanism के according rate of formation of HCl R, it is dHCl upon dt. ये किसके बराबर होगा? HCl का फॉर्मेशन आप देख रहे हैं सेकेंड और थर्ड स्टेप में हो रहा है, कंजम्पशन नहीं हो रहा है। तो सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप, तो सेकेंड स्टेप के लिए हमारे पास क्या आएगा? K2 कंसंट्रेशन ऑफ Cl फ्री रेडिकल इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2।
प्लस थर्ड स्टेप के लिए K3 concentration of H free radical into concentration of Cl2. This is the rate of formation of HCl. इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ हम जानते हैं कि Cl फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल ये क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, यार रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसलिए इनके लिए हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन SSA अप्लाई कर सकते हैं. तो सबसे पहले अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन टू Cl फ्री रेडिकल. देखें Cl फ्री रेडिकल कहाँ पर बन रहे हैं और कहाँ पर कंज्यूम हो रहे हैं. Cl फ्री रेडिकल इज फॉर्मिंग इन स्टेप 1 and 3 and consuming in 2 and 4. तो 1 और 3 प्लस और 2 और 4 माइनस, तो 1 और 3 प्लस, यानी K1 Cl2 का कंसंट्रेशन H न्यू इज प्रोपोर्शनल टू I एब्जॉर्ब. I एब्जॉर्ब मीन्स इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन. तो क्या आ जाएगा, K1 Cl2 I एब्जॉर्ब. ये जो रिएक्शन है फर्स्ट स्टेप, इट इज़ ए फोटोकेमिकल रिएक्शन. फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्योंकि क्लोरीन गैस एबंडेंट में है, तो रेट ऑफ रिएक्शन केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा, इट ओनली डिपेंड अपॉन आई एब्जॉर्ब. किस पर डिपेंड करेगा, आई एब्जॉर्ब पे. तो फर्स्ट स्टेप के लिए इट इज K1 आई एब्जॉर्ब. फिर सेकेंड स्टेप के लिए माइनस K2 Cl फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन H2. फिर थर्ड स्टेप के लिए प्लस H का कंसंट्रेशन Cl2. फिर फोर्थ स्टेप के लिए माइनस K4 Cl का कंसंट्रेशन. और ये किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 2. इसी तरीके से अप्लाइंग SSA स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन टू H फ्री रेडिकल, DH फ्री रेडिकल अपॉन DT. H फ्री रेडिकल देखिए केवल 2 में इक्वेशन स्टेप 2 में प्रोड्यूस हो रहा है और 3 में कंज्यूम हो रहा है. तो K2 Cl का कंसंट्रेशन, Cl फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन इंटू H2 माइनस K3 H फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन इंटू Cl2 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 3. अब यदि हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करें तो प्लस K2 Cl फ्री रेडिकल H2 का कंसंट्रेशन और माइनस K2 Cl फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन H2, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे. इसी तरीके से K3 H फ्री रेडिकल Cl2 माइनस K3 H फ्री रेडिकल Cl2, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे. तो हमारे पास क्या बचेगा, K1 आई एब्जॉर्ब माइनस K4 Cl फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0. और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, Cl फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू K1 आई एब्जॉर्ब अपॉन K4. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. Cl फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, K1 आई एब्जॉर्ब अपॉन K4. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब इक्वेशन 1 की अगर हम बात करें तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम
H फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन निकालना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा K2 Cl फ्री रेडिकल H2 डिवाइडेड बाई K3 Cl2 का कंसंट्रेशन। यहाँ से हम Cl फ्री रेडिकल के कंसंट्रेशन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? H रेडिकल का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू K1 K2 I एब्जॉर्ब H2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई K3 K4 Cl2 का कंसंट्रेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 4 से Cl फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन और इक्वेशन नंबर 5 से H फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करने पर, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है? K2 Cl फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन, तो Cl फ्री रेडिकल के कंसंट्रेशन की जगह अपन क्या रखना है अपने को? K1 I एब्जॉर्ब अपॉन K4 और फिर H2 का कंसंट्रेशन प्लस K3 H फ्री रेडिकल के कंसंट्रेशन की जगह अपन रखेंगे K1 K2 I एब्जॉर्ब H2 का कंसंट्रेशन अपॉन K3 K4 Cl2 का कंसंट्रेशन इनटू Cl2 का कंसंट्रेशन। तो ये सॉल्व करने पर हमें मिलेगा ट्वाइस K1 K2 I एब्जॉर्ब H2 का कंसंट्रेशन अपॉन K4। दोनों टर्म सॉल्व करने के बाद आ जाएंगे K1 K2 I एब्जॉर्ब H2 का कंसंट्रेशन अपॉन K4 प्लस K1 K2 I एब्जॉर्ब H2 का कंसंट्रेशन अपॉन K4। इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस K1 K2 अपॉन K4 I एब्जॉर्ब H2 का कंसंट्रेशन ट्वाइस K1 K2 अपॉन K4। ये सब कांस्टेंट है K1 K2 K4। इसकी जगह हम लिख सकते हैं K। किसकी जगह लिखा कि हमने? ट्वाइस K1 K2 अपॉन K4 की जगह। तो DHCl अपॉन DT किसके बराबर हो गया? K I एब्जॉर्ब IA और H2 का कंसंट्रेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ये हमारी क्या है? इक्वेशन नंबर 6। अब द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। IA की वैल्यू पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। द रेट लॉ given by this equation, say equation number 6, agrees with the observed rate law. The quantum yield for this reaction varies between 10 to the power 4 to 10 to the power 6. That means by absorption of single quanta, single photon, 10 to the power 4 to 10 to the power 6 reactant molecules can convert into product. So this is the kinetics of photochemical reaction between hydrogen and chlorine to form hydrogen chloride. This is very important mechanism. So you study this very carefully. This is all for today. Thank you.